Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I know I haven't posted anything for a long time now, and so now I will be posting about two books that I recently read, and they were very short books. I think like those books were like ऐसा 150 pages के अंदर, or you can say 100 pages के अंदर. Okay, so I was looking for reading something dark, or something like ऐसा dark, or something which will traumatize me, or something like that. But ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, मैं ट्रॉमेटाइज बिल्कुल नहीं हुई. देवर ओकेश बुक्स आई फेल्ट, मैंने उन दोनों बुक्स को 2 स्टार्स ही रेट किए हैं. सो पहली बुक जो जिसके बारे में मैं बोलने जा रही हूँ वो है द हाउस गेस्ट. ओके, सो द हाउस गेस्ट, आई थॉट दैट इट इज़ गोइंग टू बी अ स्टोरी. आई मीन जैसे नॉवल्स में होता है राइट, जैसे फिक्शंस में होता है कि वो एक स्टोरी होती है, बट दैट वॉज नॉट अ स्टोरी. मतलब एक पर्टिकुलर एक स्टोरी नहीं थी पूरे चैप्टर्स में, बट ऐसे मतलब शॉर्ट स्टोरीज थी. गॉट इट राइट. एंड हाउस गेस्ट में बेसिकली क्या था, हर चैप्टर में देयर वाज टाइप ऑफ अ गेस्ट और समथिंग हु वाज ऐसा वेरी ट्रॉमेटाइजिंग, और हु वाज टेरिफाइंग देयर द पीपल इन द हाउस. या एंड द गेस्ट वॉज अ वेरी पेक्यूलर गेस्ट. ओके, तो कुछ स्टोरीज में ऐसा होता है कि जो गेस्ट होता है उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है, बट द गेस्ट इज अ टाइप ऑफ अ क्रिएचर, यू नो, some sort of creature who is trying to like ruin the image of housekeeper or something like that, or they are terrifying them. One of the house person is attached to the creature, but other people are scared of it. Some are trying to like destroy that creature and something like that. So usko compile करके एक पूरा एक book बनाया, house guest. I really didn't like it. It was not that eerie. Some stories were a bit strange. There was this story कुछ तो थी breakfast वाली, that I really liked it. But इसका concept was very good. उसमें क्या होता है कि शी हैड अ ड्रीम कि उसने सपने में बहुत गंदा मर्डर कर दिया, एंड वो पूरा अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे रही थी. इट वॉज सो ग्राफिक एंड ऑल. एंड उसके पेरेंट्स, उसका भाई, दे वर नॉट बिलीविंग दिस. दे वर लाइक शी इज़ सिक राइट नाउ, शी इज़ टेरिफाइड राइट नाउ. एंड देन दे कॉल द डॉक्टर, बट जो जिसने बेल रिंग किया, इट वॉज नॉट अ डॉक्टर, इट वॉज पुलिस. एंड दे अरेस्टेड द गर्ल. सो इट वॉज अमेजिंग. मतलब जो द वे द ऑथर रोट इट वॉज अमेजिंग. ओके, हाउस गेस्ट को जो जैसे द वे ऑथर रोट इट वॉज गुड, राइट. But the stories were not that eerie, not that strange or dark or traumatizing at all for me. I don't know about anyone else. If you're living alone, I guess you might be afraid about it. And there were some stories जिसमें एक लड़का होता है जिसको अपनी shadow दिखती है. It was kind of weird. Parallel universe में ऐसा कुछ kind of ऐसा होता है. I mean parallel universe नहीं, but एक ही universe में he can see the same version of his, एंड ही इज़ विद अ गर्ल हु ही यूज टू अब्यूज़ एंड ऑल. एक ही स्टोरी थी. एंड एक स्टोरी ऐसी थी कि वो एक लड़की को मार देता है बिकॉज उसकी वो लड़की एक दूसरी लड़की को स्टॉक कर रही होती है, और उस लड़के को प्रॉब्लम हो रही थी कि वाई आर यू स्टॉकिंग हर एंड ऑल. बट वो लड़की कर रही होती है स्टॉक या नहीं, वी डोंट नो. अगेन आई विल से द स्टोरीज वर वेरी बिजार एंड वेरी ईरी टाइप ऑफ स्टोरीज, बट आई रियली लाइक्ड इट, बट नॉट दैट मच. I was looking for something more dark. The house guest, it was so lame though. It was very lame. But okay, it's fine. I guess I can, if I think about it right now, I think I can rate it 3 out of 5, but I rated it 2 out of 5 on Goodreads. But yeah, I was expecting a lot because I was told that you'll be traumatized and all, you'll be terrified, you won't be able to sleep at night. But I'm sleeping peacefully. I'm not having such dreams, or I don't feel like someone is stalking me, or I don't feel like there's a creature under my bed, or I don't feel like there's a doppelganger of me or something. No, nothing. So here was this book, The House Guest. Now we will go to next book, My Sister, a Serial Killer. Okay, so the title might sound intriguing. Wow, My Sister, a Serial Killer. It's gonna be a very good read and all. It was a short read, again 150 pages के अंदर ही book थी. I read it in a day only, and it was a good read based on Nigeria. So I liked it because I've never read a book which is based on Nigeria, and it was like a bit different for me. Like the names and people and their culture was a bit different for me. But yeah, okay, but the writing was good. Again, the writing was good, but the story was so lame. उसमें पता है इतना अच्छा अच्छा स्टोरीज को बिल्ट अप करते हैं वो लोग, बट वो बिल्ट अप करके where are the stories going? They are not going anywhere. They were not that great. They were like very average. Okay. My sister, serial killer. आई थिंक नेम से ही पता पड़ता है कि शी उसकी बहन है सिस्टर किलर. तो जो
में इसकी बहन सीरियल किलर है। तो जो स्टोरी नरेट कर रहा है वो है इनोसेंट सिस्टर, जो जिसने मारा है वो है गिल्टी वाली सिस्टर, बट द इनोसेंट सिस्टर ऑलवेज क्लीन्ड एंड ऑल। फर्स्ट मर्डर हुआ तो इनोसेंट सिस्टर वॉज द वन हु क्लीन्ड एवरीथिंग। फर्स्ट मर्डर हुआ था एक लड़के का, विच वॉज आई डोंट नो, शी क्लेम्ड, हर सिस्टर क्लेम्ड दैट इट वॉज एक्सीडेंटल, बट आई डोंट थिंक सो। सेकेंड मर्डर उन्होंने अपने पापा का किया था, बट बाय द वे उनके पापा जो थे ही वाज सो अब्यूसिव। ओ बाय द वे इस बुक में बहुत शॉर्ट चैप्टर्स है विच आई लव्ड इट। शॉर्ट चैप्टर्स हेल्प मी टू फिनिश द बुक फास्ट। आई मीन आई लव शॉर्ट चैप्टर्स अ लॉट, आई प्रेफर देम एवरी टाइम ऑल द टाइम। सो या पापा थे बहुत अब्यूसिव थे, दे यूज टू बीट देम अ लॉट, उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को, फॉर एनीथिंग लिटरली। और बट ही ऑल्सो केयर्ड अ लॉट अबाउट हिज रेपुटेशन। वो बाहर अपने बच्चों को ऐसे ट्रीट करते थे, या कोई गेस्ट आते थे ऐसे ट्रीट करते थे जैसे ओ माय गॉड यही है सब कुछ, वही है सब कुछ। एंड पापा क्या एक नाइफ शो ऑफ किया करते थे, ही यूज टू लव दैट नाइफ एंड ऑल। सो वही उनकी बेटी ने चुरा लिया नाइफ, जो छोटी वाली थी, विच हु वॉज वेरी गॉर्जियस, वेरी ब्यूटिफुल। उसने चुरा लिया एंड शी यूज टू किल पीपल विद दैट नाइफ ओनली। फिर उसने नेक्स्ट अपने बॉयफ्रेंड को मारा, एक्स बॉयफ्रेंड फेमी नाम था। फिर एक लड़के को मारा जो एक मैरिड मैन था, जिसके साथ वो दुबई घूमने गई थी। आई नो राइट। उसको मारा, पता नहीं नाइफ से मारा या नहीं, आई एम नॉट श्योर। एंड देन उसके बाद शी वॉज अबाउट टू किल समवन एल्स, जो कि एक डॉक्टर था, उसकी बहन, यानी कि जो इनोसेंट बहन थी उसके, वो नर्स थी, तो वो उसके हॉस्पिटल में एक डॉक्टर था। The sister, innocent sister, had a huge crush on that doctor, right? But the doctor saw the gorgeous sister because she was so gorgeous. He liked her, and वो उसको sorry for my overreacting. I just realized it was just so bad. So he liked and used to ask her out on dates and all, and they used to go out, and then sister used to say that my sister is not that good, blah blah. So basically फिर वो उसको भी मारने वाली होती है, लेकिन वो नहीं मरता। तो लेकिन वो जो बहन होती है गिल्टी वाली, वो खुद को स्टैप कर देती है, अब क्या कर देती है वी डोंट नो। एंड देन उसको, वो अपनी बहन को कॉल करती है, जल्दी से इधर आओ, जल्दी से। वो जाती है, वो उसको एज यू नो वो नर्स होती है, तो वो बांधती है उसकी पट्टी वट्टी, एंड उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और बोलते कि जो डॉक्टर था, टेड बाय द वे, डॉक्टर ने ही उसको स्टैप किया था, बल्कि डॉक्टर ने नहीं किया था। एंड जो इनोसेंट सिस्टर थी वो डॉक्टर को बोली थी कि शी इज़ डेंजरस, शी इज़ ऑलरेडी किल्ड समवन, या शी रिवील दिस बिग सीक्रेट। बाय द वे वो जो नर्स थी, उसने एक पेशेंट था कोमा में, उसे लगा था वो सुन नहीं सकता या नहीं कर सकता। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर ए नर्स, तुम्हें कैसे नहीं लग सकता कि वो सुन नहीं रहा होगा? हाउ आर यू सो श्योर? आई मीन नर्सेज नो दैट राइट, कि कोमा पेशेंट्स कैन स्टिल लिसन टू वॉट यू आर सेइंग, राइट? शी यूज टू tell all the crimes to her, all the crimes her sister committed, and how she used to feel around her sister and all, everything. But okay, whatever. सो बस स्टोरी यही ख़त्म होती है। हाँ, वो ठीक हो जाती है, वो घर चल जाती है, फिर वापस लास्ट में एंडिंग ये होती है कि वो एक लड़का वापस उस लड़की से मिलने आता है टू आस्क हर आउट ऑन अ डेट और समथिंग, एंड देन वो अपनी बहन को इंट्रोड्यूस करवाती है, फिर दोनों वो स्माइल करते हैं एक दूसरे से, मतलब a little secret between them that इसको भी मार दूंगी मैं, हा हा हा, and you'll have to clean, हा हा हा, I'm so sorry। अभी जब स्टोरी पढ़ के I felt like कुछ इंटरेस्टिंग होगा, someone will kill someone, something interesting will happen, but ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसमें she just committed some crimes and they just talked about that and that's it। So lame, I know right, so lame, you know what, in my mind I thought that maybe this innocent sister is actually delusional, or she's schizophrenic or something like that, and she's hallucinating that she is not killing people and she's actually protecting her sister. But the fact was that she herself was killing people and she was paranoid, and her sister was helping her out, and she used to be delusional about all of this stuff and make stories and all, and she was fantasizing everything, and she was actually the one who was killing people, not her sister, the gorgeous one. But it was just I just wanted to read something dark, and yeah, so even though it's fine कि like अगर डार्क नहीं होता चलता, but at least उसमें कुछ ऐसा तो बताते कि we don't know about who the murderer is. They just wrote about what do you say,
अबाउट द किलिंग्स एंड दे डिडंट इवन स्पेसिफाई कि किसको कैसे मारा. जो फर्स्ट मर्डर था उसको स्पेसिफाई नहीं किया, सेकंड मर्डर था उसको स्पेसिफाई कर दिया, लेकिन फिर लास्ट में तुमने क्या मतलब फ्यू लोगों को जब पता पड़ा कि वो मर गया तो क्या, व्हाट डिड यू जस्ट से देम, कि व्हाट डिड यू टेल अदर पीपल, आई मीन योर रिलेटिव्स एंड ऑल, कि हाउ डिड ही डाई बाय स्टैबिंग हिमसेल्फ. आई मीन इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल. जो दूसरा लड़का मरा, तीसरा लड़का आई मीन उसका एक्स बॉयफ्रेंड राइट, उसके बारे में भी कुछ इतना इन्वेस्टिगेशंस हुआ नहीं. एंड इट कुड हैव बीन ईजी टू कैच देम बट ना. एंड जो डॉक्टर वाला इंसिडेंट था वो भी कुछ ऐसा इतना वो नहीं था, इट वॉज ईजी ओनली. एंड जो पेशेंट था कोमा में, चलो ठीक है ही केप्ट द सीक्रेट बिकॉज वो जो नर्स थी इनोसेंट सिस्टर, वो आती थी उनको चेक करने के लिए ऑल द टाइम व्हेन इवन his own family members not used to come there and all, but still she came. So yeah, but I still felt like story could have been better, like it could have been way better, like jaise We Were Liars में थी. I will not spoil the book We Were Liars right now because right now I'm spoiling House Guest and my sister a serial killer. Okay, so that's it. I'm so sorry for posting my video इतना late, and I know ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं इन वीडियोस को, but I'm still excited about it. And new update you guys, अब मैं जयपुर में नहीं रहती हूँ, अब मैं रहती हूँ बैंगलोर में. मेरा न्यू रूम है. आई विल नॉट शो यू माई न्यू रूम राइट नाउ बिकॉज आई एम नॉट इन अ मूड टू शो, कि ये इतना खास भी नहीं है, बट मैंने कुछ नहीं यहाँ पे वॉल पे कुछ लगाया या कुछ भी नहीं. सो या, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इन सब चीज़ों की. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर तुमने पूरा देखा है तो ही पूरा थैंक यू एंड बाय. आई होप मैं जल्दी से कोई न्यू बुक पढ़ूँ, न्यू रिव्यू डालूँ. अभी मुझे फ्री टाइम मिल गया था बाय द वे. अच्छा ओके, नहीं, आई नीड टू गो नाउ. बाय.